So the next step is adding manure and fertilizers. We have done preparation of soil, we have done sowing. Now the next is adding manures and fertilizers. Students, we all know that plants prepare their food by their own with the process of photosynthesis. Then what is the need of this adding manure and fertilizers? This you can understand, like you people eat the food, but still for good growth and for good development, your mother give you complain also, your mother give you Bournvita also in the milk, so you take extra things also along with the food. The same way the plants also need manures and fertilizers for the good growth, because these manures and fertilizers fulfill the requirement of the soil. Sometimes there is a lack of nutrient into the soil, so with the help of these manures and fertilizers we can fulfill the requirement of the plants. Now what is the difference between manures and fertilizers? So this you can understand, like सपोज़ आपकी मामा बोलती हैं कि नहीं, मेरे को मार्केट के ना कॉम्प्लान पर और मार्केट के बॉर्नविटा पर बिल्कुल भी फेद नहीं है, मैं घर पर ही अपना कॉम्प्लान बनाना चाहती हूँ, आई वांट टू मेक एट होम. तो घर पे ही शी इज़ यूजिंग एलमंड्स एंड पिस्ताकियोज एंड अदर थिंग्स, एंड उनको सबका पाउडर बना के सारे ड्राई फ्रूट्स को उन्होंने रख लिया. उन्होंने बोला कि ये जो है ये मेरा नेचुरल कॉम्प्लान है मेरे बच्चे की फॉर गुड ग्रोथ. और दूसरा जो है वो मार्केट से लेकर आया है. द सेम डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मिनरल्स. Fertilizers are prepared with the help of chemical in fertilizer industries, and these are specially for some special type of nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. So most of the times we have NPK fertilizers, that stands for nitrogen, phosphorus and potassium. And manure is a kind of thing which is prepared by the natural things, by the process of vermicompositing with the help of microorganisms. When microorganisms work on the dead bodies of plants and animals, these are the organic substances, they convert them into the compost pit, that is a kind of manure. तो नेचुरल चीज़ों से, नेचुरल मेथड से जो बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एज मैन्योर, और केमिकल्स की हेल्प से जो बनेगा दैट इज़ फर्टिलाइज़र. सो फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड inorganic salt, and manure is natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues. Clear? Fertilizers is prepared in factories and manure can be prepared in the fields only. In the fields only where there is waste, the microorganisms will start work on that and will convert that into the manures. Fertilizers does not provide any humus to the soil, but manures provide a lot of humus to the soil. Fertilizers are very rich in some nutrient like nitrogen, phosphorus and potassium, and manures are relatively less rich in these nitrogen, phosphorus and potassium. इसीलिए हमें fertilizers की ज़रूरत पड़ती है. This question, the difference between fertilizer and manure is very important, and the advantages of manure is again a very important question. The manures enhances the water holding capacity. See, soil should have this capacity to hold the water, otherwise plants will not be able to absorb the water. अगर soil हमारी बहुत ही ज़्यादा लूज़ होगी, उसमें बड़े बड़े होल्स होंगे, तो क्या होगा, वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी, पानी बहकर आगे चला जाएगा, और जब रूट्स को पानी एब्जॉर्ब करना होगा सॉइल के पास पानी ही नहीं होगा. तो सॉइल जो है वो ऐसी अच्छी मानी जाती है जो वाटर को होल्ड कर सके, और मैन्योर्स जो हैं वो वाटर, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, इन्हांस करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, जिससे जब चाहे प्लांट्स जो हैं सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएँ. इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी. सॉइल को थोड़ा पोरस बना देती है. पोरस मीन्स लाइक जैसे आपका केक होता है ना, एंड ढोकला होता है, वो थोड़ा स्पॉन्जी सा होता है, उसके बीच में थोड़े थोड़े छोटे छोटे होल्स होते हैं, होल बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे होल्स, तो दैट इज़ कॉल्ड एज पोरस. तो जब छोटे छोटे होल्स होंगे तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजिली हो पाएगा, ब्रीथ कर पाएंगे ईजिली. तो ये मैन्योर इन्हांस करता है सॉइल की प्रॉपर्टी को. इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स लाइक अर्थवॉर्म्स एक्सेट्रा. इन सबको क्या करता है वो, माइक्रोब्स को और अर्थवॉर्म्स को बढ़ाता है वो, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है और सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है. नाउ वी हैव प्रिपेयर्ड द सॉइल, नाउ वी हैव सोन द सीड्स, now we have given the fertilizers and manures also to the crops. Now this is the time to give water. Giving water to the plants is called as irrigation. Clear? Like plants absorb all the water from the earth only, from the soil only, but still there is need to give water to the crops. बाहर से भी हमें देना पड़ता है. And there are different sources of water. The sources of water for irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers. These all are the sources, and these are some traditional methods. पहले हम लोग क्या करते थे, the water was available in wells, lakes and canals. तो वहाँ से वाटर डिफरेंट रीजन से, पहले तो
आदमी खुद लेकर आता था, फिर एनिमल्स की हेल्प से लेकर वहाँ से नदियों से बकेट्स में और उसमें पानी भर भर के लाते थे और फील्ड्स में डाल दिया जाता था। फिर उसके बाद वही काम उन्होंने एनिमल से करवाना शुरू किया। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। इतना ज़्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं हो पाता था। वो मेथड्स क्या आते हैं हमारे, मोट, चेन पम्प, ढेकली, राहत, ये सब जो डायग्राम्स बने हुए हैं, देखो कहीं पर एनिमल्स चला रहे हैं, कहीं पर ह्यूमन बीइंग खुद पानी डाल रहा है, कहीं पर उन्होंने एनिमल्स को एक पंप से अटैच कर दिया। जैसे जैसे एनिमल घूमता रहेगा वो पंप हमारा घूमता रहेगा और उसमें से वाटर निकल निकल के फील्ड्स में जाता रहेगा। फॉर दीज पर्पसेज वी यूज़ डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी टू रन दीज पम्प्स। कहीं पर हम एनिमल्स को यूज़ करते थे, कहीं हम सोलर एनर्जी को यूज़ करते थे, बट ये जो थे ट्रेडिशनल मेथड्स है। अब इन मेथड्स का यूज़ नहीं किया जाता, जो बहुत ज़्यादा हमारे वैसे विलेजेस हैं जहाँ अभी तक मॉडर्न मेथड्स नहीं पहुँचे, वहाँ कहीं होता हो तो हो सकता है, बट बेसिकली हम इन मेथड्स को यूज़ नहीं करते। नाउ वी यूज़ द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन, जिसमें हमारे पास दो कॉमन मेथड है, वन इज़ स्प्रिंकलर सिस्टम एंड अनदर इज़ ड्रिप इरीगेशन। स्प्रिंकलर सिस्टम में स्टूडेंट्स क्या होता है, दिस इज़ मोर यूजफुल फॉर द अनइवन लैंड, जहाँ पर ज़मीन जो है ऊंची नीची होती है, ठीक है, एंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। तो इसमें क्या किया जाता है, परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं जिसमें रोटेटिंग नोजल्स होते हैं। जैसे ऐसे लगता है जैसे आपका शार होता है ना, नहाने के लिए शार आप यूज़ करते हो तो, या फिर फाउंटेन्स होते हैं, इस तरीके का कुछ होता है इसमें, और इसमें से रेगुलर इंटरवल्स में से पानी निकलता रहता है रोटेटिंग नोजल्स में से, और स्प्रिंकल होकर जैसे बारिश गिर रही हो, जैसे रेनफॉल हो रहा है, ऐसे क्रॉप्स के ऊपर पानी गिरता रहता है, ठीक है। सेकंड आता है ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन में क्या है, वाटर को जो पाइपलाइंस हैं उनको डायरेक्टली रूट्स के साथ अटैच किया जाता है और ड्रॉप करके पानी उसमें से निकलता है एंड रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर। ये जो सिस्टम है ड्रिप सिस्टम, दिस इज़ वेरी गुड सिस्टम बिकॉज देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वेस्टेज ऑफ वाटर इन दिस सिस्टम। तो वेयर देयर इज़ वेरी लैक ऑफ वाटर, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा कम होता है, उन रीजन्स के लिए तो इट्स अ काइंड ऑफ बून, बट दिस सिस्टम इज़ एक्सपेंसिव, so that is why the poor farmers cannot afford this system। ये थोड़ा सा महंगा सिस्टम है, ठीक है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरीगेशन, ये दो मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम इरीगेशन की प्रोसेस कर सकते हैं, यानी अपने प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ दिस इज द टाइम टू रिमूव अनवांटेड प्लांट्स। एज आई हैव टोल्ड यू, समटाइम्स some unwanted or undesirable plants also grow along with the main crops and they absorb all the nutrient of the main crops, and these plants are called as weeds, जिसमें सबसे कॉमन है ग्रास। यू कैन सी ग्रास कभी भी कहीं भी ग्रो कर जाता है ना। सो दिस इज़ द टाइम टू रिमूव द अनवांटेड प्लांट्स, दैट इज़ वीड। सो दिस वर्क वी कैन डू मैनुअली ऑल्सो। अगर आपके घर पर छोटे छोटे लेवल की आप वो कर रहे हो प्लांटिंग, तो आप मैनुअली, आपको नज़र आ रहा है ये प्लांटर निकालते रहो। अच्छा, अदरवाइज़ जो गार्डनर्स होते हैं, जिनके पास बड़े बड़े गार्डन होते हैं, वो गार्डनर्स अरेंज कर देते हैं। आपने देखा होगा उनके हाथ में सीजर टाइप की कुछ चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड एज खुरपी, उससे भी वो रिमूव करते रहते हैं, कुछ कुछ कट करते रहते हैं। तो वो कट एक्चुअली वीड्स को ही रिमूव कर रहे होते हैं। बट व्हेन वी डू द फार्मिंग इन अ वेरी लार्ज स्केल, सो डूइंग दिस वर्क, डूइंग वीडिंग by manually and with the help of khurpi is very difficult. So that is why we are having certain chemicals which are called as weedicides, like 2,4-D. When we spray these weedicides will kill the crops, but they will not damage the crops. Like अगर हम मच्छर मारने का स्प्रे करते हैं या कॉकरोच का स्प्रे करते हैं, तो उससे ऑब्वियसली हम तो नहीं मरेंगे ना, मच्छर ही मरेगा, कॉकरोच ही मरेगा। हाँ, बट येस, because that are poisonous chemicals, so that may affect us. So it is always same way, it is always advisable to the farmers that whenever they spray the weedicides or insecticides or pesticides, they should take precaution. They should cover their nose, they should cover their eyes with the help of goggles or thing. And if some farmers afford, they can spray these weedicides and insecticides with the help of aircraft also. So now we have first prepared the soil, then we have sown the seeds, then we have given the manures and fertilizers, then we have given water, then we have removed the unwanted plants also, we have sprayed the insecticides and pesticides also, so that the crops can grow properly. Now our crops are ready. Now this is the time to cut the crops, this is the time to harvest the crops. So the cutting of the crops after maturing is called as harvesting. So we will cut the crops. So earlier we use sickle for this method. You can see the diagram of the sickle on your screen. सिकल ये एक टूल था जिसकी हेल्प से हम कटिंग किया करते थे, बट एज आई हैव टोल्ड यू कि नाउ वी आर यूजिंग द मॉडर्न मेथड्स फॉर ऑल द थिंग्स. सो फॉर ऑब्वियसली फॉर हार्वेस्टिंग ऑल्सो वी विल यूज द मॉडर्न मेथड. पहले क्या करते थे, हम हार्वेस्ट करते थे इससे
ये जो हमारे पास सिकल नज़र आ रहा है, फिर उसके अंदर से सीड्स निकालने पड़ते थे. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट वीट, लाइक मैं वीट का एग्जांपल लेती हूँ. तो वीट का क्या होता है, जैसे मटर होता है ना, बाहर का छिलका होता है और अंदर के दाने होते हैं, एंड वी कंज्यूम ओनली द सीड्स जो मटर के होते हैं. तो सेम वे वीट के भी हमें ग्रेन्स चाहिए होते हैं, अंदर के जो सीड्स होते हैं वो हम कंज्यूम करते हैं. तो जो बाहर का कवर है वो हमारे को ज़रूरत नहीं होती, दैट इज़ कॉल्ड एज शाफ. तो थ्रेशिंग की प्रोसेस से, क्योंकि जब हम वीट की कटिंग करते हैं तो जो बाहर का कवर होता है वो मटर के छिलके की तरह इतना ज़्यादा मॉइस्चर वाला नहीं होता, वो कम्प्लीटली ड्राई होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका होता है. जैसे कि आपके चिप्स, जैसे कि पापड़, चिप्स और पापड़ पे अगर आप हल्का सा प्रेशर डालोगे, हाथ रखोगे, तो क्या होगा, वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, है ना. सेम वे इफ़ वी विल प्रेस द वीट क्रॉप्स, तो क्या होगा, ऊपर का जो कवर है उसका शाफ है वो रिमूव हो जाएगा और अंदर से ग्रेन्स निकल आएंगे. दिस इज़ कॉल्ड एज थ्रेशिंग. तो पहले हम हार्वेस्टिंग किया करते थे, फिर थ्रेशिंग किया करते थे. बट नाउ डेज वी आर हैविंग अ मशीन विच इज़ कॉल्ड एज कंबाइन. विद द हेल्प ऑफ कंबाइन वी कैन डू द वर्क ऑफ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग साइमल्टेनियसली. दोनों काम हमारे हो जाते हैं. और उसके बाद विनोइंग की प्रोसेस. विनोइंग की प्रोसेस में क्या होता है, वी सेपरेट द शाफ एंड ग्रेन. शाफ और ग्रेन अलग अलग, तो मतलब शाफ अलग और ग्रेन्स अलग तो हो चुका है, निकल चुके हैं ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ, बट स्टिल दे बोथ आर मिक्स्ड. अभी तो एक दूसरे के अंदर मिक्स ही हैं वो. तो अब क्या करेंगे हम, विनोइंग की प्रोसेस से. यू पीपल मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 6, आपने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में पढ़ा हुआ होगा ये. विनोइंग की प्रोसेस से हम क्या करते हैं, शाफ और ग्रेन को अलग कर देते हैं. बिकॉज शाफ इज़ लाइटर इन वेट, तो वो दूर चला जाता है उड़कर, और जो ग्रेन्स हैं वो हैवी होते हैं वेट में, तो वो पास में गिर जाते हैं. इस तरीके से शाफ और ग्रेन्स को हमने अलग कर लिया. नाउ दिस इज़ अ टाइम टू स्टोर. स्टोरेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, because if we will not store the things, store the grains or the crops properly, then the pests and insects may attack on that and can spoil that. So it is, first thing is very important to dry the crops completely. There should not be moisture in that. As I have told you in the chapter of microorganisms, that microorganisms require moisture to grow. If there is no moisture, the microorganisms will not grow. So before storing them, it is important to dry the crops in the soil. Or nowadays we are having machines also. With the help of that we can dry our crops completely, so that the bacteria and pests and fungi do not attack on that. And then we mix some insecticides and pesticides, and we store the grains in the big bags or metallic bins, or in the silos or in the granaries, and there we can protect them from the pests and rats and insects. At our homes we can use dried neem leaves also for storing the food grains, because ड्राइड नीम लीव्स ऑल्सो वर्क एज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. और इससे भी हम काफ़ी हद तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक से अपने खाने को, अपने ग्रेन्स को बचा सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इंक्रीज़ द क्रॉप प्रोडक्शन अ लॉट, एंड वी हैव इंक्रीज एक्चुअली. अगर हम सारे स्टेप्स पे अच्छे से ध्यान दें, हर चीज़ को ठीक से वैसे ही करें जैसा कि बोला गया, हर एक में मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करें, तो उस लिमिटेड लैंड में भी हम अपने क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. स्टूडेंट्स, वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो, है ना. ये तो हमने पढ़ा कि व्हेन वी ऑब्टेन द फूड फ्रॉम plants, that is called as agriculture. But when we obtain the food from animals, that is called as animal husbandry. When we obtain the food from animals and we rear the animals for this purpose in a very large scale, मतलब हम पालते पोसते हैं animals को for the food purposes at a very large scale, that is called as animal husbandry. About the animal husbandry you people will study in detail in class 9th, I guess 9th में chapter है या 10th में है. You people will study in detail, because in animal husbandry there are many branches. क्योंकि एनिमल्स अलग अलग हैं, अलग अलग एनिमल्स से हमें अलग अलग फूड मिलता है. लाइक वी ऑब्टेन मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स, दैट इज़ काउ, बुफेलो, शीप. These gives milk to us, that is called as milchiculture. Then we obtain honey from the honeybees. So rearing of honeybees for obtaining honey is called as apiculture. Then we rear the fishes also for the meat purposes or for medicine. fish से बहुत सारी medicines बनाई जाती हैं, capsules बनाए जाते हैं उनके ऑयल से, एंड कुछ लोग फ़िश को खाते भी हैं. तो फ़िश की जब हम रेयरिंग करते हैं, रेयरिंग मीन्स उनके जब पालते हैं, पोसते हैं, ध्यान रखते हैं उनका, फॉर दिस पर्पज़, दैट इज़ कॉल्ड एज पिसिकल्चर. तो इन सब में हमें पिसिकल्चर, एपीकल्चर, मिल्चीकल्चर, इन सब में हमें बताया जाता है
कि इस पर्टिकुलर एनिमल को अच्छे से रेयर करने के लिए, अच्छे से ग्रो कराने के लिए, इससे अच्छे से अपने फूड प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लाइक इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड कि अगर हमें क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छा करना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो इन एनिमल हस्बेंड्री वी स्टडी कि अगर किसी पर्टिकुलर एनिमल से हमें किसी पर्टिकुलर फूड को ऑब्टेन करना है अच्छे से, तो हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दैट वी स्टडी इन सीनियर क्लासेस. So this is all about this chapter. This was a recapitulation video. Otherwise the other videos already we have sent to you.